अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाजरीन, एयरपोर्ट पर एक फैमिली अपने चश्मो चिराग को बैरून मुल्क रवाना करने के लिए मौजूद है। आइए देखते हैं। ਵੇਖ ਅਕਰਮ ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੀਂ। ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ ਯਾਰ, ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੁੱਤ ਅਕਰਮ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਤ? ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵੀਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਟ ਪੋਸ ਦਾ ਐਦਕੀ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਮੈਂ ਉਚੇਚਾ ਆਪ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਵਾਂਗਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਆਈ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਓਏ ਲੈ ਵੀ ਫੜ ਲੈ ਆ ਕੁੜੀਏ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਾ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਮਠਿਆਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ ਯਾਰ। ਅਕਰਮ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿਮ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜੇ। ਹਾਏ ਓਏ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਸਫਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾੜ ਲਿਆ ਜੇ। ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਵੀਰੇ? ਆ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈਗੀ। ਯਾਰ ਅਕਰਮ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਕਰਮ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣ ਵੀ। ਪਨ ਬੜੀ ਬਗਲ ਚ ਪੇਟੀ ਮਾਰੀ, ਜੰਜਾਂ ਜੱਤਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ, ਅਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਚੌਂਸਾਈ ਆ ਫੜ। ਚੌਂਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਚੌਂਸਾ। ਵੇਚੀ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਆਪਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭਾ ਮੀਨ ਨੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਨਹੀਂ। ਚਲ ਆ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹਿਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਥੋੜ ਏ। ਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜਨ ਦੇ। ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਆਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਓਏ ਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ। ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਹੈਲੋ। Come on, man. Mind your business. What are you talking about? ਯੈਸ ਯੈਸ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ? ਆਦਾ ਬਵੋ ਬਵੋ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਵੋ। ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੂ। ਜਾਣ ਲਿਆ ਭਾਣ ਕਿਹੜਾ ਮਫਰੂਰ ਏ। आपकी बातें हो रही हैं। Come on, man. Look like you guys are crazy people. ਕੀ ਆਂਦਾ ਈ? ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਓਏ ਏਡੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, 에어ਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਿਮ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਹਾਏ ਉਹ ਸਿਮ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਠਿਆਈ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਈਂ, ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੁੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਜੂੰ। ਓਏ ਅਕਲ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਮਠਿਆਈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਪਈ ਏ? ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੀ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਵਾਪਸ। ਹਾਏ ਛੱਡ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਭਾ। ਆ ਪਛਾਣੀ ਉਹ ਭਾ ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ। ਇਹ ਚੌਂਸਾਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਗਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਹਾਏ ਓਏ ਮੁੰਡਿਓ, ਓਏ ਇਹ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਾਸ ਦੀ ਪੁੜੀ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪਟਾਸ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਬਰੂਦ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਣ ਚੁੱਕੋ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਬ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋ ਪਾਗਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੇਟੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਆਇਆ? ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਕੇਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਆ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠਾ। ਆ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਅੰਬਾਂ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਆ ਆਪਣਾ ਗੰਧਕ ਦੀ ਪੁੜੀ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਕੋਈ? Come on, man. Relax. Relax. ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰੇਲ ਕਾਰ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। तो यार अकरम रिलैक्स रहो यार, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है यार। एयरपोर्ट का जो अमला होता है ना, जो हुक्काम, उनको सब इन्फॉर्मेशन होती है, सब पता होता है उनको, कोई केस वेस नहीं बनेगा इसमें। ਜਹਾਜ਼ ਚ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਅਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਬਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਿਮ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ। ਯਾਰ ਮਠਿਆਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਏ, ਸਿਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੂੰ। ਕੀ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੂੰ ਵਲੈਤੀ ਘਿਓ ਦੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ।
ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਡਈ ਆ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਠੇ ਕੌਣ ਖਵਾਏਗਾ। ਵੇਖਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੁੰਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਲਾਈ ਮਲਦੀ ਸਾਂ। ਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮਲਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਏ। ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਨਗਲਿਆਂ ਪਾ ਛੱਡੀ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਭਾ ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੇਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਓ ਆ ਚੌਂਸੇ ਵਾਲੀ ਹਲਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਂਸਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਆਂਦੀ ਏ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਂਸੇ ਤੋਂ ਤਰਸੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਾਵੀਂ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਇਹਦੀ ਖੈਰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਬਲਾਦਰੀ ਵੇਖਣੀ ਏ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੰਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਲ ਜਾਣ। ਆ ਫੋਟੋ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹੈਲੋ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਸਿੱਧ ਪੁੱਠ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਏ। ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ ਭਾ, ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇਰੀ ਫਲੈਟ, ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਹੁਣ ਹੋਰੇ ਫੇਰ ਕੋ ਦੂਜਾ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਬਲਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੇ ਰਖਾਈ ਆ। ਹੈਲੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ। ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰੀਏ ਲੱਥ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਡਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਮਾ ਕੇ ਭੇਜੂਓ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਅਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਮ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਕੁੜੀਏ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਫੋਨ ਦਾ ਰਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਲੈਟ ਮਿਸ ਕਰਾਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੈਂਡਾ ਖੋਟਾ ਕਰਾ ਦੇਵੀ। ਉਹਨੇ ਪੈਂਡਾ ਖੋਟਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਭਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਪੈਂਡਾ ਖੋਟਾ ਕਰਨਾ। ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਪ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ, ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਪਹੁੰਚਾ ਛੱਡੇ ਉੱਥੇ ਭਾ ਮੀਨ ਤੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ। Shut up, man. Sit down. Relax. Sit down. ਆਹ ਲਾ Sit down. ਓਕੇ Don't bother me. ਓਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਲੂ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਦਾ। ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਲੈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਕਿਧਰੇ ਫੇਰ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਖੈਰ ਕੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਧਰ। ਉਹ ਪੇਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਕਿਧਰੇ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਟੀ ਚਾੜਨੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ। ਭਾਨ ਪੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਬਈਓਂ ਵੀ, ਚੌਂਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਂਸਾ ਖਾਧੀਆਂ 3 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਤਰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੌਂਸੇ ਨੂੰ ਚੂਪਣ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਤੋਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੋਲ ਲੋ ਡੱਬਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਅਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਸਿਮ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਸਿਮ ਲੈ ਲੈ ਬਾਈ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਢਿੱਲੇ ਪੇੜੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ। ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਲਈ ਈਦ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਬੂਹੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਸਰ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਂਦਾ ਲਓ ਭੈਣ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਝਾੜਦੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਵਸੀਮ ਪੋਤੇ ਕਿਹਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਨਾ ਨਾ ਅਬੂ, ਇਹ ਅੰਕਲ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਈ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਲਹਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਚੱਲਿਆ? ਕੋਈ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਅੰਬਾਨੀ ਪੇਟੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖੋ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ, ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੈ ਜਾਓ, ਲੈ ਜਾਓ, ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰਾ, ਲੈ ਜਾਓ, ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਗਿਆ? ਭਾਈ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆ ਤੈਨੂੰ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ। ਅਗਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੈ ਆ ਵਸੀਮ ਚੁੱਕ ਪੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 에어ਪੋਰਟ ਦੀ ਨੁਕਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 2200 ਦੀ ਵੇਚ ਛੱਡਣੀ ਏ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ? ਜੀਲਾ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਖਾਨੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਮ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਸਿਮ ਖਰੀਦ ਲੈ ਪਹਿਲੇ, ਪੇਟੀ ਨਾ ਖੜੀ ਸਾਡੀ। ਆਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਚਾਚੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਪੇਚੀ? ਉਹ ਫੜ ਵੀ ਫੜ। ਲੈ ਜਾਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਲੈ ਜਾਗਾ। ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਿਆ ਵੀਰਾ? ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇਗਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ, ਕੁਛ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਸੱਕੀ ਏ। ਸਾਡਿਆ ਕਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਭਰਾ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚੀ। ਹਾਏ ਐਨੂੰ ਤੂੰ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। Attention please, ladies and gentlemen, लंदन जाने वाली फ्लाइट PK 707 रवानगी के लिए तैयार है। मुसाफिरों से गुजारिश है कि जहाज में तशरीफ ले आए। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਓਏ ਅਕਰਮ, ਓਏ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿਮ ਲੈ ਲਈ ਓਏ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਮੀਜ਼। ਅਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਗਖੜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਠਾ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੀ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਜਾਣ ਦੇ ਗੁੱਸਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਇਸ ਫਲੈਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ? ਓਏ ਅੱਬਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆ, ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਈ ਫਲੈਟ। ਇਹਦੀ ਹੋਰੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਫਲੈਟ? ਵੱਖਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨਹੂਸ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਮਨਹੂਸ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਘਰ ਫਿਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਖਾਮ ਹੀ ਤੱਪ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੱਪ ਚੜਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ ਬੈਠਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੌਰੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਲਿਆ ਫੜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਾਜੀ ਅਸਗਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਦੁਬਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਹੂਸ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਬੈਠਾ ਰਹਿ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਠਾਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਪੁੱਜ ਜਾਣੀ ਆ। वैसे यार माफ कीजिएगा, आप लोगों का ये जाती मामला है, आपका पर्सनल मैटर है, मगर कोई तौर तरीका होता है, कोई मैनर होता है, कोई ख्याल होता है यार। वो अकरम सही तो चीख रहा है कि यार हर कोई आ रहा है, कोई मिठाई का डब्बा दे रहा है, कोई सामान दे रहा है, किसी को आमों की पेटी की पड़ी है। ओ भाई, सामान ले जाने की एक लिमिट होती है। हर बंदा उठा के सामान दे देता है कि मेरा सामान ले जाओ, मेरा सामान ले जाओ। कुछ ख्याल करें यार उसका। हाँ जी। बस भाजी सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਡਿਆ। ਹਾਏ ਭੈਣ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅੜਾ ਲਾਹੌਰ ਚ ਬੁਰਜੀ ਚੌਂਕ ਜਹਾਜ਼ ਖਲੋਤਾ ਰਾ, ਉਹ ਚ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਨ ਵੀ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘਬਰਾਏ ਨਾ। ਹਾਏ 3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਘਬਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਅਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਿਮ ਲੈ ਲੈਣਾ। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। मौलाना साहब आपके ख्यालात भी गोगे से बहुत मिलते हैं। गोगा जब खाना खाता है तो सोचता है कि महीना 35 दिन का हो जाए, वाह। और जब तनख्वाह का सोचता है तो कहता है कि महीना 20 दिन का हो जाए। वेलकम टू द शो मौलाना साहब। फरीद आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने बुलाया है और हमारी गुफ्तगू से लोगों को आगाही मिलती है, मालूमात मिलती है। वाह। तो सबसे पहले तो
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने पीटीआई के दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ, बल्कि अभी मेरा ख्याल है कि दोस्ती का लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, वो वक्त आने पे इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। अब फिलहाल मैं अपने पीटीआई के वाकफकारों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल दी है, मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। देखिए, हर चीज़ का एक वक्त होता है, बिल्कुल, हर चीज़ की एक तरतीब होती है। जैसे आप कभी भी खाने से पहले मीठा नहीं खा सकते, खाना खाने के बाद मीठा खाते। जिस तरह आप सर्दियों में पंखा नहीं चला सकते, गर्मियों में स्वेटर नहीं पहन सकते, फेसबुक खोल के केमिस्ट्री की बुक नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज का वक्त है, हर चीज की एक तरतीब है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये जो 24 नवंबर इन्होंने एहतजाज का मैसेज दिया है अपनी आवाम को, ये भी वक्त मुनासिब नहीं है। और वैसे भी वो क्या कहते हैं कि कद्र को देता है यूं रोज का आना जाना। तो मेरा ख्याल है कि वो शेर आया वाला काम ना हो जाए। आप मुनासिब वक्त के ऊपर और फिर बड़े अच्छे तरीके से मंसूबा बना के, तैयारी पकड़ के, किसी समझदार और किसी जीरक सियासतदान से मशवरा करके वो कॉल दिया करे। वाह भाई, आपके मुल्क के अंदर बड़े जीरक और दूरअंदेश और बड़े मजे हुए सियासतदान बैठे हुए हैं, आप उनसे मशवरा तो करें, बातचीत तो करें, उनको पूछे तो सही कि मौलाना ये बताइए कि 24 नवंबर ठीक रहेगी या 24 दिसंबर ठीक रहेगी या 24 जनवरी ठीक रहेगी। ये आपको एक एक्सपीरियंस्ड आदमी ही बता सकता है। मौलाना साहब, अगर उन्होंने नहीं पूछा तो आप उन्हें मशवरा दे दीजिए। आपने कभी साइलेंट फकीर को पैसे दिए? साइलेंट फकीर वैसे ही खड़ा है, वो कुछ मांग ही नहीं रहा, मुंह से बोल ही नहीं रहा, कोई इशारा तक नहीं कर रहा, आप उसको कैसे खैरात दे देंगे? कुछ तो इशारा होना चाहिए, कुछ तो खुदा तरसी का वो सिंबल होना चाहिए, तो फिर ही बंदा वो रुकता है और खैरात करता है। वो अगर आपसे कोई इशारतन भी ना पूछे, कम अज कम चले ऐसे ही कर दे। मौलाना साहब, कोई आपको ऐसे भी नहीं कर रहा और आप बोलना शुरू कर दे और बताना शुरू कर दे, ये मुनासिब नहीं है। आपकी सारी मिसालें ठीक है मौलाना साहब, लेकिन मीठे वाली मिसाल मुनासिब नहीं। मीठा चाहे खाने से पहले खा लें चाहे बाद में खा लें, कोई ऐसी बात नहीं। आपके लिए तो खाली मीठा भी मुनासिब नहीं। मेरा ख्याल है मीठे के पीछे 2 देग लिखा होना चाहिए। लेकिन मौलाना साहब, एहतजाज के लिए फिर मुनासिब वक्त कौन सा होगा? वही ये तो पीटीआई वाले जब मुझसे पूछेंगे, मुझसे रब्ता करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर उनको बताएंगे कि मुनासिब वक्त क्या होता है। फिलहाल तो हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि ये बार बार एहतजाज में और गुस्ल में फ़र्क होना चाहिए। ये गुस्ल थोड़ा है जो हर रोज ही कर लिया जाए। और मैं ये भी समझता हूँ कि एहतजाज का एक रोब और दबदबा होना चाहिए। जब आप एहतजाज की गाल दे तो फिर ईमान के दरो दीवार हिल जाने चाहिए। अब ये चूंकि हर दूसरे दिन एहतजाज का शोर मचाते हैं, इसलिए फिर उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। रोजाना तो आप आलू बैगन नहीं खा सकते, रोजाना तो आप मूंगरे आलू नहीं खा सकते। एक दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, तीसरे दिन कह देंगे कि यार कोई और चीज भी लाए, रोज ही आलू बैगन। अल्लाह, आलू बैगन बड़ी मजे की चीज होती है। आपको पसंद है मौलाना साहब? जी हाँ, अगर उसमें गोश्त डाला हो तो। हाय हाय हाय,
आलू बैंगन तो 2 दिन खा लिए मौलाना साहब, तो लगता है 2 महीने तो खा रहे हैं। और ये एहतजाज की काल का मामला भी ऐसा ही है। देखिए, एहतजाज की काल से पहले जी मुअस्सर हिकमत अमली बनाना पड़ती है। ठीक, क्या बात। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि पीटीआई के पास कोई भी मुअस्सर हिकमत अमली बनाने वाला कोई समझदार सियासतदान मौजूद नहीं है। उनको चाहिए कि इसके लिए मेरी पार्टी के साथ राब्ता करें, अच्छा बल्कि JUI में दाखिला लेकर मुअस्सर हिकमत अमली का 5 साला कोर्स मुकम्मल करें। क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद दोबारा PTI में जाए। इसके बगैर PTI में जाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप ईंटों में खड़ी गाड़ी में घुस जाए। 5 साला कोर्स, यानी 5 साल के लिए PTI वाले आपकी पार्टी में आ जाएं और अगले इलेक्शन में आपको वोट दें। देखिए, इतनी फीस तो बनती है हिकमत अमली सिखाने की। वैसे भी मेरा ख्याल है कि उनसे KPK तो संभाला नहीं जा रहा। KPK की हुकूमत देख के इस तरह लग रहा है कि PTI वाले 5 किलो आटा 1 किलो वाले शापर में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह आटा भी जाया होगा और शापर भी पट जाएगा। इसलिए मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो अपने इस इलेक्शन अपना एहतजाज की तारीख को मौखर कर दे, और अगर इतनी जल्दी है तो 31 नवंबर अनाउंस कर दे। 31 नवंबर? नवंबर में तो 31 का महीना ही नहीं होता मौलाना। यही तो हिकमत अमली। वरना फिर 30 फरवरी रख ले। मौलाना साहब, फरवरी भी 30 का नहीं होता। इसी को तो मुअस्सर हिकमत अमली कहते हैं। या फिर फरवरी के 30 होने का इंतजार करे। देखिए, माशाल्लाह 29 तक तो पहुंच गया है। मेरा ख्याल है अगले साल 30 का हो जाएगा। यानी PTI वाले ना ही समझें। मौलाना साहब, आपके ख्यालात भी गोगे से बहुत मिलते हैं। गोगा जब खाना खाता है तो सोचता है कि महीना 35 दिन का हो जाए, और जब तनख्वाह का सोचता है तो कहता है कि महीना 20 दिन का हो जाए। ये तो गलत बात है। खाना खाते हुए क्यों सोचते हो कि महीना 35 का हो जाए? ये सोचा करो कि देग 35 किलो की हो जाए। मौलाना, ये बताइए कि आप बरतानिया के दौरे पे गए हुए थे, कोई खास मीटिंग्स थी? नहीं, मीटिंग तो ऐसी कोई खास नहीं थी। अच्छा। दरअसल ताज़ा हवा लेने के लिए गए हुए थे। अच्छा। और जी वहाँ से हमने 10 शापर ताज़ा हवा के भरे, और उससे अब अच्छा वक्त गुजर जाएगा। और दूसरा सियासी चेकअप के लिए गए हुए थे। सियासी चेकअप? और जी जरा चेक करवाने गए थे कि ये जो आईनी तरमीम की वजह से हमारी नस पाज हुई है, उसमें कहीं किसी नस में प्रेशर 30 से ऊपर तो नहीं चला गया। क्योंकि सियासी नस में प्रेशर ज्यादा हो जाए तो उसके फ्रैक्चर होने का खतरा होता है। और आखिरकार आपको आईनी तरमीम पर घुटने टेकना पड़ गए। देखिए फरीद, मैं ये समझता हूँ कि ये महज इल्ज़ाम तराशी है, बल्कि सबक राशि है। बिल्कुल हमने घुटने नहीं टेके। आप हमारी चपलियों के ऊपर देख सकते हैं, कहीं मट्टी नहीं लगी हुई। क्योंकि जब इंसान घुटने टेकता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मट्टी लग जाती है। हमारे अल्लाह के फजल से दोनों चपलियाँ बिल्कुल साफ है। इसलिए ये फजूल बातें हैं कि हमने घुटने टेक दी। हाँ, बल्कि हम ये समझते हैं कि आईनी तरमीम के मसले में हमारे मुखालिफिन ने घुटने टेके। ये आप कैसे कह सकते हैं? भाई देखिए, जो हमारे दिल में था वही उन्होंने कर दिया। बड़ी गहरी बात कह गए मौलाना साहब। और बात ये है फरीद, बल्कि मैं ये अपना गोगा जी से और तैला साहब से ये कहना चाहूँगा। अच्छा। कि जब आप घुटने टेके तो सिर्फ उस वक्त टेके जब नीचे कोरमे की प्लेट पड़ी हो। खाली घुटने टेकने से तो मेरा ख्याल है कि चपलियों के ऊपर खराशें आ जाती है।
जब आप आगे कोरबा पड़ा हो तो उसके लिए घुटने टेके तो ध्यान आपका बोटियों की तरफ होता है, फिर आपको चपटियों के ऊपर खराशें नहीं आती। अच्छा मौलाना साहब, आपने ये फरमाया है कि आपकी पीटीआई के साथ तलखियाँ कम हो गई हैं, ये कितनी कम हुई हैं? बस 3-4 चम्मच चीनी मजीद डालने की जरूरत है और अगर उसमें 2 इलायचियाँ भी डाल दी जाए तो तलखी मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए। मौलाना साहब, ये तलखी कम कर रहे हैं या दूध पत्ती बना रहे हैं? वैसे मैं माफी चाहता हूँ, कितना बुरा लगा आपके मुंह से दूध पत्ती। माशाल्लाह शक्ल से तो लगता है कि आप तेज पत्ती पीते हैं और जिक्र आप दूध पत्ती का कर रहे हैं। वो देखिए आपके साथ बैठे हुए हैं कहवा पीने वाले, वो एक लफ्ज भी मुंह से निकाल रहे, या ये जो आधा चम्मच चाय पीने वाले मोहतरम है, उन्होंने कोई मदाखलत की है? आप इनसे मशवरा कर ले जो रोजाना सुबह 1 टैंकर चाय के साथ 100 बंद खाते हैं। नहीं मौलाना साहब, मैं आधा कप चाय का और 1 टोस्ट लेता हूँ। मौलाना साहब इसकी डाइटिंग नहीं है, गुर्बत है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। उन्होंने भी सोचा कि यार केड़े रिच ने जेड़े गड्डी दे मगर ही पै गए ने, गड्डी नूं केड़ा शहद लगा है। यू नो, रिच जो होता है वो शहद उतने ही शौक से खाता है जितने शौक से गोगा नियाज खाता है। डस अल्लाह खैर करे। और फोके फायर ना करो भाई। आज न्यूज जेम्स बॉन्ड जैसी फायरिंग करेगा, आपकी हंसी रोक गई तो ता कहना। अच्छा, ऐसी खबर सुनाएगा आज न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 क्या आप कहेंगे कि जिंदा रहो, जिंदा रहो। खबर सुनने तो पहले कह देने जिंदा रहे यार, जिंदा रहे। वाह, चलो बड़ी मेहरबानी, फिर नहीं सुनाते खबर। कहाँ जा रहे हो यार, कहाँ जा यार जेम्स बॉन्ड ने तो दुआवां लैनियां होंदियां ने, वो मुफ्त च मिल गई ने, बस ठीक। खबर सुनाओ। खबर सुनानी पड़ेगी भाई। वो यार फिर इस तरह ना करो। मैंने कहा शायद इन्होंने नई खबर सुननी, दुआवां दे दी ने, जाओ जाओ करो करी। ऐसा हो नहीं सकता, खबर सुनाए बगैर नहीं जा सकते। लो जी खबर सुनिए, जरा इंतहाई दिलचस्प। अच्छा, ये मत समझे कि पाकिस्तान में इस तरह की धोखाधड़ी और फराट होते हैं, लोग दंग रह जाते हैं। अच्छा, अमेरिका में जैसा जैसा फराड होता है ना, हाय 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 हाय, हंसी से लबरेज। ये सुने जरा। हाँ जी। अमेरिका में रीछ बनकर इंश्योरेंस कंपनियों को धोखा देने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। क्या मतलब रीच बनकर? जी जी, जरा गौर करें। इन लोगों ने दावा किया था कि उनकी गाड़ियों को एक रीछ ने नुकसान पहुंचाया है और ये बताकर इंश्योरेंस कंपनियों से उन्होंने $1,42,000 का फ्रॉड किया। गल कोई समझ नहीं आ रही है जीजी। भाई जी तफसील इसके कुछ यूं है कि कैलिफोर्निया इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का ये दावा है, बल्कि उन्होंने बताया है। अच्छा, दावा की कहने करना होता, दावा कौन कर सकता है आजकल? नहीं तुम कर सकते हो। उतो अमरीका च ट्रंप आ गया, उत्थे हुण किन्ने दावा करना है? तो जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है ना जी कैलिफोर्निया का, उन्होंने ये बताया है कि लॉस एंजलिस के चंद लोग हैं, उन्होंने केस किया कि भाई जी साडी गाड़ियों को बड़ी महंगी मर्सिडीज, यू नो हाउ मच महंगी मर्सिडीज, इन्ने पैसे लेके जाओ तो कहते ने नहीं आई है, ले दौड़ जाओ। उनकी गाड़ियां जो महंगी तरीन है उनको रीछ ने बर्बाद कर दिया है। उस पे चिरीटेंस डाल दी हैं और गाड़ियों के अंदर घुस के उसको खराब कर दिया है गाड़ी को। तो उन्होंने कहा है जी, उन्होंने फिर केस क्या, रीछ ने खराब कर दी इतनी महंगी गाड़ी। इंश्योरेंस कंपनियों ने बेचारियों ने $1,40,000 दे दिए उन लोगों को। शक कहां से पड़ा? ये सवाल है। शक यहां से पड़ा कि उनको ये मालूम हुआ कि एक ही दिन 2 मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनियों में केस किया गया है
اور سیم کیس کیا گیا ہے کہ ریچھ نے ہماری گاڑی خراب کی ہے. انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کر دی. جو انویسٹیگیشن والے لوگ تھے انہوں نے جب ویڈیو دیکھی کہ گاڑی کے اندر ریچھ گھس رہا ہے اور گاڑی کو خراب کیا ہے، وہ ویڈیو جو انہوں نے پیش کی تھی کیس کے لیے ملزمان نے، انہوں نے کہا یار ریچھ جڑا گڈی چ وڑے ہے جس طرح وڑے ہے لگتا ہے کہ کچھ دیر وڑیچ تیارہ بھی چلاندہ رہا ہے. ریچھ تے سدھا سیٹاں تے پیر رکھ کے تے وڑ جائے گڈی. جڑا ریچھ انج کر کے سٹیرنگ تے ہاتھ رکھ کے تے انج کر کے وڑے ہے. شک لگ رہے ہے مینوں، شک لگ رہے ہے. اس نے انگریزی میں اپنے ساتھ والے انگریز سے پوچھا what you feel؟ اس نے بھی کہا yes this is fraud. اے جڑا ریچھ نہیں جی لگدا مینوں. انہوں نے پھر انویسٹیگیشن تیز کر دی. انہوں نے اپنا اجازت لے لی اپنا کورٹ سے. انہوں نے کہا جی ذرا ہمیں اجازت دیں، ہم اس کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں. ریچھ نے تے وچ بہ کے پچھلا شیشہ بھی سیٹ کیتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ریچھ نہیں کی پتا کہ اتھوں پچھو سواریاں نظر آؤں. یہ لائمن وڑیچ تیارے دا ریچھ ہے. جناب علی انہوں نے جب انویسٹیگیشن کی تو جڑے سن جی ملزمان ان میں سے ایک کے گھر میں سے ریچھ کی وردی برآمد ہو گئی. بھانڈا پھوٹ گیا. ہاں جی پانڈا ٹوٹ گیا. اور انہوں نے جب ان سے پھر پکڑ کے تو پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے ریچھ دیاں وردیاں سوائیاں نے. وہ انہوں نے پا کے تے خود ہی ریچھ بن کے تے کیمرے دے اگے جڑیاں گڈیاں کھلوتی ہیں سن انہوں نے ان کے اندر گھس کے تو خراب خروب کر کے چریٹے چروٹے پا کے تو وہ نکل گئے. انہوں نے بھی سوچا کہ یار کیڑے ریچھ نے جڑے گڈی دے مگر ہی پہ گئے نے، گڈی نو کیڑا شہد لگا ہے. یو نو ریچھ جو ہوتا ہے وہ شاید اتنے ہی شوق سے کھاتا ہے جتنے شوق سے گوگا نیاز کھاتا ہے. آئی ایم سوری گوگے، اس وقت دانشور کے پاس کوئی اور مثال نہیں. اور تمہیں پتہ ہے کہ دانشور کو اپنی دانش ثابت کرنے کے لیے بہت ساری مثالوں سے گزرنا پڑتا ہے. جو نیازیں ہیں وہ گوگے کو آوازیں دیتی ہیں، گوگے آ جاؤ. ہائے ہائے ہائے. اور وہ آواز آ رہی تھی کچھ آوازوں کے سائے. یار انہوں نے مثال میں مجھے رجسٹ کیا، آپ تو مجھے ڈیگریڈ کر رہے ہیں. یار بات ریچھ کی سنا رہا ہوں، آپ گوگے کے پیچھے پڑ گئے ہیں. گوگا ڈیگریڈ کہہ رہا ہے. ڈیگریڈ کیا کرنا، تم کون سے جاگیردار ہو؟ ہمارے جیسے ماڑے سے بندے. فریض صاحب ہمارے گوگے نے بھی ایک ڈرامے میں کردار کرنے کے لیے ریچھ کی وردی سلوائی اور پرپل رنگ کی سلوا لی. ڈرامے کے ڈائریکٹر نے نکلا. پرپل ریچھ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے بندہ کہے کہ کل میں نے کالا دہی کھایا تھا. یار یہ اگر اپنی انہوں نے دانشوری کھلارنی ہے تو پھر آئی ایم سوری. یار تم بات کرو، چھوڑو. نہیں عزیزی ریچھ کی طرح سے ناراض ہو گئے یار، آگے آؤ. ریچھ کی آپ کو کہانی سنا رہا ہوں اتنی دلچسپ. وہ جب پھر ریچھ کی وردی پکڑی گئی اچھا اور وہ سارے پکڑے گئے جو 1,40,000 ڈالر لے اڑے تھے، انہوں نے ڈکیا اندر. پھر اندر بہ کے آپس سے لڑنا شروع کرتا. تینوں کیا ہی کہ بس کر دے، وردی کدھر غائب کر دے، نو اگ لا دے. وہ اگوں بیچارہ کہندا رہے کہ بھائی یار تہاڈی بھرجائی نے ایک فنکشن تے جانا سی. انہیں کہا تہاڈا کام تے ہو گیا تے نویں کپڑے نہ جایا کرنا. انہیں کہا یہ ریچھ دی وردی. انہیں کہا کوئی گل نہیں، میں کہوں گی کہ نیا ڈیزائن آیا ہے. بس اتھوں بیچارے نے نئی وردی جلائی یا نئی غائب کی تھی تو وہ پکڑا گیا ہے. ویسے یار میں اس واقعے کے بعد ایک بات سوچ رہا تھا کہ اگر اصل ریچھ بھی کبھی کسی گاڑی کو نقصان پہنچا دے تو انشورنس کمپنیاں تو اب اعتبار نہیں کریں گی. یار وہ گورا کوئی ایسے فضول نہیں چڑ جاتا، وہ ہر چیز کو بڑے دھیان سے دیکھتے ہیں. انہوں نے کیوں اعتبار نہیں کرنا؟
असली रीच होगा तो वह एतबार। यार आई एम वेरी सॉरी फरीद, यार तुम तो अमेरिका रह के आए हो, तुम्हें वहां के हालात का नहीं पता। मुझे तो लगता है ये भी उधर पढ़ने नहीं था गया हुआ, बांदर की वर्दी पहन के फिरता रहा है। क्या फजूल बात कर रहे हो तुम यार। यार गोरा है वो, गोरा। यार गोरा 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 सुन सुन के कान पक गए मेरे। यार काले भी इंसान ही हैं, क्या बात है। यार वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि वो गोरा जो है वो उसका नाम गोरा है। जो ब्रिटिश। हाँ जी, जिस तरह तुम्हारा घर में नाम काला है ना, उनका नाम गोरा है। वाह। तो वो जो गोरा है वो बड़ा समझदार है। वो देखो ना जरा कैसा उन्होंने पकड़ा कि रिच जड़ा गड्डी च बैठा है कर वाह वाह। क्या किया इसने, रिच तो ऐसे करता ही नहीं, वहां से उन्होंने पकड़ा है। अजीजी वैसे रीच ने गाड़ी में बैठते हुए इतने ठुमके नहीं लगाए जितने तुम लगा रहे हो। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। इन्होंने एक दफा किताब खोल ली थी तो कमजोरी से उसके ऊपर गिर गए थे। फिर इनकी क्लास के एक शरारती बच्चे ने जोर दी किताब बंद कर दी, ये फिर एक सफे के ऊपर चस्पा हो गए थे। अच्छा जी, मैं आज जरा आप लोगों से एक सवाल करने लगा हूं, आई मीन क्वेश्चन। आप सब में से कोई मुझे बता सकता है कि आपको किताब पढ़े हुए कितनी देर हुई है? यानी आपने आज या कल या परसों या तरसों या इस वीक में किसी ने भी कोई किताब पढ़ी है? नहीं, क्या पढ़नी किताब, मैं तो थोड़ा बहुत मकान बना रहा हूँ जीजी, वो मटीरियल वालों की पर्ची पढ़ता रहता हूँ। 5 बोरियां यार मैं किताब की बात कर रहा हूँ, मटीरियल वालों की पर्चियां कोई इशफाक अहमद साहब ने नहीं लिखी हुई। आप पढ़ते हैं जी, आप जो ज्यादा हंस रहे हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, मैं तो ऑनलाइन ही नॉलेज हासिल करता हूँ। क्या सवाल पूछ लिया तुमने। वाह 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 वाह। और माशाल्लाह इनका जो कंप्यूटर होता है ना जी, वो आपको बताऊं कौन सा होता है? कौन सा? वो जिसमें रोटियां रखते हैं। वो भी कंप्यूटर जितना ही होता है ना, उसको ऐसे कंप्यूटर को खोल के तो ऑनलाइन नॉलेज हासिल करते हैं। आपने थैला साहब कोई किताब पढ़ी हो? मैं तो अजीजी उतनी ही किताब पढ़ता हूँ जितनी पे मुझे शकरकंदी रख के देते हैं। लो दानश्वर होके शकरकंदी खाते हो? आपने कभी कोई जुर्रत की हो किताब खोलने की? 2-3 बंदे बुला के गए जरा और हल के किताब खोलिए। नहीं, काफी देर हो गई है। हाँ जी, आप तो मेरा ख्याल है डर गए हुए हैं। इन्होंने एक दफा किताब खोल ली थी तो कमजोरी से उसके ऊपर गिर गए थे। फिर इनकी क्लास के एक शरारती बच्चे ने जोर दी किताब बंद कर दी, ये फिर एक सफे के ऊपर चस्पा हो गए थे। वेरी शेमफुल। ये हैं दानिश्वर हमारे। हाँ जी। अब मैं यही सोचता हूँ किसी वक्त कि अब किताब जो है वो बिल्कुल ही नापायद हो गई है। हाँ, बिल्कुल दूर हो गई बहुत, नजर ही नहीं आती। किसी घर में किसी बंदे को आप नहीं देखते पढ़ते हुए। आप कहीं अगर किसी को देखें कुछ पढ़ते हुए तो उसने मोबाइल फोन ही खोला होता। बिल्कुल बिल्कुल। वरना ये चंद साल पहले तक या कह लें कि 3-4 दहाइयां पहले जी महफिलों में थड़ों के ऊपर आम गलियों मोहल्लों में भी बैठे हुए जो लोग होते थे, हाँ जी हाँ जी, उनके अंदर लाजमन किसी ना किसी वक्त इस तरह की गुफ्तगू होती थी कि उसमें इशफाक अहमद साहब का जिक्र हो रहा है या मुमताज मुफ्ती साहब का को हवाला दिया जा रहा है या इब्ने इंशा की बात हो रही है जी हाँ या मुश्ताक यूसुफी साहब का कोई चुटकुला सुनाया जा रहा है जी हाँ या कर्नल मोहम्मद खान साहब या फिर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के किसी बुक की बात हो रही है या किसी सफरनामे का हवाला दिया जा रहा है। बिल्कुल। अब तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। कोई किताब कोई कहीं पे को बुक रीडिंग बिल्कुल नहीं नजर आती। यार बड़ा शौक था बड़े बड़े लोगों को किताब लिखने का। मैं कहता हूं जी बड़े बड़े सियासतदान बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट आला ओहदेदार जो थे वो अपनी आप बीती या अपना मुशाहिदा या अपना तजुर्बा वो किताब पे मुंतकिल करते थे। जी हाँ हर दूसरी जगह पे ये नजर आता था। जैसे आप देखें ना कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में हमेशा
शहाब नामा की बात होती रहती है, जी हाँ, फिर मुख्तार मसूद साहब की बात होती है, जी, फिर जुल्फकार अली भुट्टो, परवेज मुशर्रफ, बेनजीर भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी साहब, मुर्शद मैं सदके मुर्शद की बात, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, गिलानी साहब, मौलाना कौसर नियाजी, फिर जावेद हाशमी, जी हाँ, ऐसी ऐसी किताबें इन लोगों ने लिखी हुई हैं और उससे बड़ा नॉलेज मिला है अगली नस्लों को। अब ना कोई लिखता है, ना कोई पढ़ता है, ना किसी की सोच है। किसी वक्त फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि ऐसी करण की डे हैं जड़ा लिखिए, मगर बड़ी देर के बाद एक बड़ी अच्छी खबर मुझे मिली, बल्कि मिली क्या, मैंने देखी किताब, तो मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। वाह, वाह 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 वाह, ये मैं कोई शुदाई नहीं हूँ, मेरा दिल खुश हुआ। अच्छा चलो अब बताओ भी सही, किस बात पे दिल खुश हुआ है? एक हमारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं सईद मेहदी साहब, जी जी जी, मुझे उनका इसलिए मालूम है कि हम जब यहाँ पे अलहमरा में ड्रामे किया करते थे तो वो लाहौर में कमिश्नर थे। अच्छा, तो वो अलहमरा में आते थे। एक दफा यहाँ पे अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, शुएब हाशमी साहब ड्रामा की रिहर्सल कर रहे थे, तो उधर वो शुएब साहब को भी मिलने के लिए आए रिहर्सल के दौरान। उस वक्त वो कमिश्नर थे। उन्होंने एक किताब लिखी है, जाहिर है एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, हर सीट पे बैठे हुए हैं और वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के साथ वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे भी रहे हैं। जी जी, उनकी जो किताब लिखी गई है उसका नाम है द आई विटनेस। वाह, अच्छा, इस किताब की लॉन्चिंग 7 दिसंबर को कराची आर्ट्स काउंसिल में हो रही है। जहां तक मुझे सईद मेहदी साहब के बारे में इल्म है, वो एक शानदार लिखारी हैं। वाह 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 वाह, बड़ी खतरनाक हद तक काबिल और लायक ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं। फिर वो बहुत से ऐसे तारीखी वाकयात के ऐनी शाहिद हैं, उनके किताब के नाम से ही जो जाहिर होता है आई विटनेस, ऐसे वाकयात जिन्होंने पाकिस्तानी सियासत और हुक्मरानों की किस्मत के फैसले देखे हुए हैं। वाह वाह, लाजमन इनकी किताब जो है वो बहुत मजेदार होगी और बड़ी नॉलेजेबल होगी, मगर यहाँ अब किताब का रवाज ही नहीं रहा हुआ। रिवाज ही नहीं रहा तो फिर खुश किस बात पे हो रहे हो? यानी उन्होंने मेरी खुशी ते भी इतना आई और खुशी इस बात की हो रही है भाई जी कि ये जिस किस्म की शख्सियत है, जैसी इन्होंने जिंदगी गुजारी है, लाइमन इनकी किताब में इतनी दिलचस्पी होगी कि लोग पढ़ेंगे। वाह, ये कहना चाह रहा हूँ। तुम्हें पता है जब ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ साहब के साथ, तो आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने बरतरफ करने का जब फैसला किया था, इस फैसले के नतीजे में नवाज शरीफ साहब को तो पहले जेल और फिर सऊदी अरब जाना पड़ गया। खुद सईद मेहदी साहब भी 2 साल कैद रहे थे। ये किसी भी ब्यूरोक्रेट के लिए एक नया तजुर्बा था। अब तो खैर फवाद हसन फवाद, वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, वो भी गिरफ्तार हुए। फिर आहद चीमा साहब, वो बड़े तगड़े ब्यूरोक्रेट रहे, पकड़े गए। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के जो लोग हैं ना जी, इनको लाइमन अपना मुशाहिदा, अपना तजुर्बा, अपना आंखों देखे जो वाकयात हैं, उनको किताब की नजर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, That's why I thankful to सईद मेहदी साहब। गुड लक। आना चाहिए लिखने वालों को आगे, किताब लिखनी चाहिए उन्हें। जी हाँ, और आते रहते हैं। अभी एक और किताब मेरे नजर से गुजरी है। अच्छा, बुल्ले शाह की धरती के राइटर अमजद जफर अली साहब ने मशहूर जलियांवाला बाग के पसे मंजर में कसूर के हालात को एक किताबी शक्ल दी है, जिसका नाम ही कसूर मार्शल लॉ 1919 है। वाह, कैसा प्यारा नाम है, कसूर मार्शल लॉ 1919। इस किताब में अंग्रेजों के बदनामे जमाना कानून 1919 में रोल्ट एक्ट की वजह से जो हंगामा आई और कत्लो गारत हुई थी उसे बयान किया गया है। अच्छा, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी दिलचस्प चीज है कि अंग्रेज सरकार ने जो मार्शल लॉ लगाकर
जुल्म और सितम की दास्तान लिखी थी, उसे इन्होंने अपनी किताब में मुंतकिल किया है। फिर इसी जवान ने, चूंकि ये नौजवान आदमी है और इसने अपने शहर कसूर की मिट्टी का मोहब्बत का जो हक अदा किया है, वो भी क्या बात है। कसूर तारीख के आईने में, वाह, एक किताब और लिखी है कसूर तारीख के आईने में। मैं समझता हूं कि बहुत खूबसूरत तरीके से उसने कसूर की तारीख लिखी है, क्योंकि कसूर शहर को छोटा नहीं है, बड़ा अजीम शहर है, बड़ा अजीम शहर है। ये बुल्ले शाह की धरती है, ये बड़े गुलाम अली खान का शहर है, ये मलका तरन्नुम नूर जहान का शहर है। बहुत बड़े लोग यहाँ पे हुए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। हर शहर के दानिशवर को और लखारी को चाहिए कि अपने अपने शहर की तारीख और अपने अपने शहर की शख्सियात के हवाले से लिखें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गुजरात के मुसन्निफीन जो हैं वो भी अपनी किताबें लिखें और इसमें बताएं कि अय्यी कैसे एक अयीम खजल खराब हुआ था। यार ये लाहौर वाले मेरे बारे में क्यों नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते? क्या इनकी कलमों की स्याही मुक गई है? घबराओ ना गौरी, लिखेंगे लिखेंगे। हमारे शहर में एक पागल था जो गर्मियों में पेंट कोट और हैट पहन के फिरता था। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। मारूफ कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं कि रात दिल को नर्म करती है और नर्म दिल में खुदा खुद ही आन बैठता है। वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।